کا کام کیا کرتا تھا اور شہر کے بیچوں بیچ ایک بڑے بازار میں اس کی غلے کی دکان تھی۔ اس دکان میں گندم، چاول، گڑ، شوگر، مکئی اور دالیں فروخت ہوتی تھیں۔ اس کی ایمانداری، خوش اخلاقی اور غلے کے مناسب داموں کی وجہ سے لوگ دور دور سے اس کی دکان میں سودا لینے آتے تھے۔ اس کی دکان میں دو نوعمر لڑکے بھی کام کیا کرتے تھے۔ ایک کا نام احسان تھا اور دوسرے کا مقصود۔ وہ دونوں تقریباً ہم عمر ہی تھے اور کوئی 12 سال کے ہوں گے۔ ان لڑکوں کا تعلق غریب گھرانوں سے تھا اور دونوں کے باپ اس دنیا میں نہیں تھے۔ وہ امانت کے محلے میں ہی رہتے تھے اور اسے ان کے گھر کے حالات کا علم تھا، اس لیے اس نے انہیں اپنی دکان میں کام کرنے کے لیے رکھ لیا تھا۔ یہاں سے انہیں جو کچھ بھی ملتا وہ اسے اپنی ماؤں کے ہاتھ پر رکھتے، جس سے وہ گھر کا خرچ چلاتی تھی۔ یہ دونوں بڑی محنت اور جان فشانی سے امانت کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ امانت ان کی محنت اور ایمانداری سے بہت خوش تھا۔ ایک روز دوپہر کا وقت تھا، سخت گرمی پڑ رہی تھی۔ گرمی کی وجہ سے سارا بازار سنسان پڑا تھا اور لوگ اپنے اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے۔ احسان اور مقصود دکان کے ایک کونے میں دوپہر کا کھانا کھا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ امانت بھی دکان میں موجود تھا، اس لیے دونوں لڑکے سرگوشیوں میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ وہ امانت کا بہت ادب کرتے تھے اور ان کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ ان کی کسی بات سے اسے کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے۔ ان دونوں لڑکوں میں احسان زیادہ ہوشیار اور ذہین تھا۔ اسے ہر معاملے میں سوچ بچار کی عادت تھی، اس وجہ سے امانت اسے بہت پسند کرتا تھا۔ وہ دکان کے معاملات میں بھی بہت دلچسپی لیتا تھا اور اس کو بہتر طریقے سے چلانے کے لیے امانت کو مشورے بھی دیا کرتا تھا۔ وہ مشورے ایسے ہوا کرتے تھے کہ امانت بخوشی ان پر عمل کرتا تھا۔ اسی کے مشورے پر امانت نے ایک لکڑی کی بڑی سی 2 پہیوں کی ہتھ گاڑی بنوا لی تھی۔ جو لوگ زیادہ سامان خریدا کرتے تھے، امانت ان کا وہ سامان اس گاڑی میں لدوا دیتا تھا اور احسان اور مقصود مل کر وہ سامان اس جگہ پہنچا دیتے تھے جہاں وہ گاہک اسے لے جانا چاہتا تھا۔ گاہکوں کو اس سہولت سے بہت آسانی ہو گئی تھی۔ اس سے ان کی یہ پریشانی دور ہو گئی تھی کہ سامان کو خود اٹھا کر کیسے لے جائیں۔ امانت اس کام کی اپنے گاہکوں سے ایک دمڑی بھی نہیں لیتا تھا، چونکہ یہ کام احسان اور مقصود مل کر کرتے تھے، اس لیے اس نے ان کی اجرت میں 5 درہم ماہانہ کا اضافہ بھی کر دیا تھا۔ سمجھو یہ ان کی محنت کا انعام تھا۔ اس وقت کام تو کوئی تھا نہیں، گرمی کی وجہ سے گاہک دور دور تک نظر نہیں آ رہے تھے اور بازار میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اس لیے امانت نے سوچا کہ گھر کا ایک چکر لگا لے، شام سے پہلے پھر آ جائے گا۔ اس نے گلے میں پڑی اشرفیاں اور درہم ایک تھیلی میں بھرے اور انہیں اپنے چوغے کی جیب میں رکھا اور اٹھنے ہی والا تھا کہ دکان کے دروازے پر ایک لمبا چوڑا شخص نمودار ہوا۔ اس کے چہرے پر گھنی داڑھی اور مونچھیں تھیں اور اس نے سر پر ایک کپڑا لپیٹ رکھا تھا۔ اسے دکان میں آتا دیکھ کر امانت دوبارہ اپنی جگہ پر بیٹھ گیا اور اسے دیکھنے لگا۔ اس آدمی کے کپڑے اتنے قیمتی تھے کہ امانت کے ذہن میں خیال آیا کہ وہ کوئی بہت ہی بڑا امیر کبیر آدمی ہے۔ وہ آدمی اندر آ گیا تو امانت نے کہا کہ فرمائیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ اس آدمی کو دیکھ کر احسان اور مقصود بھی اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر اس کے نزدیک آ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ امیر آدمی غلہ خریدنے آیا ہوگا اور انہیں سامان تول تول کر دینا پڑے گا۔ اس آدمی نے کہا کہ میرا نام گوہر سوداگر ہے، میں سلطان پور میں رہتا ہوں اور وہیں میرے غلے کی دکان بھی ہے۔ اس دفعہ سلطان پور میں بارشیں بہت کم ہوئی تھیں، جس کی وجہ سے وہاں زیادہ غلہ پیدا نہیں ہو سکا۔ یہی وجہ ہے کہ مجھے اتنی دور سے آپ کے پاس آنا پڑا۔ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ آپ ایک ایماندار آدمی ہیں اور آپ کی چیزیں بہت اچھی ہوتی ہیں اور ان کے دام بھی بہت مناسب ہوتے ہیں۔ مجھے بڑی تعداد میں غلہ درکار ہے، کیا اتنا زیادہ غلہ مجھے مل سکتا ہے؟ اپنی تعریف سن کر امانت بہت خوش ہوا۔ اس نے گوہر سوداگر کو تخت پر بیٹھنے کا کہا اور بولا کہ خدا کا شکر ہے کہ میرے پاس ہر طرح کا بہت سا غلہ موجود ہے، آپ حکم کریں، آپ کو کیا کیا چاہیے؟ گوہر سوداگر نے کہا کہ میں اپنے ساتھ 6 اونٹ لے کر آیا ہوں، بس آپ سمجھ جائیں کہ مجھے کتنا سامان چاہیے ہوگا۔ اس کی بات سن کر امانت حیران رہ گیا۔ اس نے آگے جھک کر دکان سے باہر جھانکا، باہر 6 اونٹ کھڑے تھے، اس کی رسیاں سیاہ فام غلاموں نے تھام رکھی تھیں۔ اس نے کہا کہ آپ مجھے بتا دیں کہ آپ کو کون کون سی اشیاء چاہیے، میں انہیں نکلوا کر دے دوں گا۔ گوہر سوداگر نے اس کو سامان بتانا شروع کیا۔ امانت ان چیزوں کو لکھتا گیا۔ احسان اور مقصود نے بڑی پھرتی سے سارا سامان بڑے سے ترازو میں تول تول کر دکان کے
बाहर रखा, जिसे गोहर सौदागर के गुलाम उठा कर ऊंटों पर लादने लगे। इस दौरान अमानत हिसाब किताब करने लगा कि कुल सामान की क्या कीमत है। उसने तमाम अशिया की तफसील लिखकर उनके आगे उनकी कीमत भी लिखती थी। सारा सामान 5000 अशरफियों का था। गोहर सौदागर ने हजार अशरफियों की 5 थैलियां निकालकर अमानत के हवाले कर दी। अमानत ने एक थैली को उलटकर उनकी अशरफियां तख्त पर ढेर कर दी और मकसूद को पास बिठाकर उन्हें गिनने का कहा। खुद उसने दूसरी थैली खोल ली थी और उसमें मौजूद अशरफियों को गिनने लगा। अचानक बेख्याली में मकसूद का हाथ अशरफियों के ढेर से टकरा गया और चंद अशरफियां जमीन पर गिर पड़ी। ये अचानक ही और गैर इरादी तौर पर हुआ था। अपनी इस हरकत पर मकसूद शर्मिंदा नजर आने लगा। एहसान नजदीक ही खड़ा था। उसने जल्दी जल्दी अशरफियां जमीन से उठाना शुरू कर दी और उन्हें तख्त पर रखने लगा। अचानक एक बात देखकर अमानत सकते में आ गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। जब एहसान उन अशरफियों को जमीन से उठा रहा था तो उसने आंख बचाकर एक अशरफी अपनी जेब में डाल ली थी। वो इस बात से बेखबर था कि अमानत उसे देख रहा है। अमानत उस पर बहुत एतमाद करता था और उसे बहुत अच्छा लड़का समझता था। उसकी इस हरकत से उसे दिली सदमा पहुंचा, मगर उस वक्त तो उसने एहसान से इस बारे में एक लफ्ज भी नहीं कहा और ऐसा बन गया जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है। उसने सोच लिया था कि जब गोहर सौदागर चला जाएगा तो वो एहसान से इस बारे में पूछताछ करेगा। चोरी करना बुरी बात होती है। उसने फैसला कर लिया कि इस हरकत के नतीजे में वो अब उसे अपनी दुकान में भी नहीं रखेगा, बल्कि नौकरी से ही उसे निकाल देगा। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने 5 थैलियों की अशरफियां गिन ली तो अमानत ने देखा कि एहसान दुकान में मौजूद नहीं था। उसके जहन में आया कि शायद वो अशरफी को कहीं छुपाने गया है। एक मर्तबा फिर अमानत को उसकी हरकत पर अफसोस हुआ। वो तो उसे एक बहुत ही अच्छा और हाथ का साफ लड़का समझता था, मगर आज उसने एक अशरफी की चोरी करके उसके एतमाद को ठेस पहुंचाई थी। अमानत की दुकान सामान से तकरीबन खाली हो चुकी थी और उसमें मौजूद सामान ऊंटों पर लाद दिया गया था। चारों गुलाम उस मुशक्कत के काम में पसीना पसीना हो रहे थे। अमानत ने मकसूद को बाजार की तरफ दौड़ाया कि वो जल्दी से उनके लिए शरबत ले आए। चारों गुलाम काम खत्म करके एक कोने में बैठ गए थे। मकसूद जल्द ही ठंडा और खुश जायका शरबत ले आया और मट्टी के आबखोरों में डालकर सबको पेश किया। अभी वो लोग शरबत पी ही रहे थे कि अमानत की नजर दूर से आते हुए एहसान पर पड़ी। उसे देखकर अमानत को एक मर्तबा फिर वो वाकया याद आ गया जब एहसान सबकी नजर बचाकर एक अशरफी अपनी जेब में डाल रहा था। उसकी उस हरकत पर अमानत को दोबारा अफसोस होने लगा। वो उन दोनों लड़कों को अपनी औलाद की तरह चाहता था। एहसान की चोरी की वजह से उसे बहुत सदमा हुआ। अचानक अमानत ने देखा कि एहसान अकेला नहीं है, उसके साथ 6 सिपाहियों का दस्ता भी था। थोड़ी देर में वो सब दुकान में पहुंच गए। दुकान में दाखिल होते ही एहसान ने सिपाहियों से कहा कि ये वो शख्स है जिसके मुतल्लिक मैंने दारोगा साहब को बताया था। 2 सिपाहियों ने झुपट कर गोहर सौदागर को अपनी गिरफ्त में ले लिया। इस सूरत हाल से अमानत बहुत परेशान हो गया था। उसने निहायत गुस्से से कहा, एहसान, ये क्या बदतमीजी है? ये एक मुअज़्ज़िज़ सौदागर है, इनके साथ ये सलूक मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। एहसान ने बड़े अदब से कहा, मालिक, अभी आपको सब पता चल जाएगा। सिपाहियों को देखकर चारों गुलाम भी घबरा कर खड़े हो गए थे। मकसूद भी एक कोने में सहमा हुआ खड़ा था। इतने सारे सिपाहियों और उनकी म्यानों में लटकती हुई तलवारें देखकर वो खौफज़दा हो गया था। उधर गोहर सौदागर गुस्से से लाल बभूका हो रहा था। उसने निहायत गुस्से से एहसान को देखा और बोला, लड़के, तू मुझे नहीं जानता, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, इस बेइज्जती का बदला जरूर लूंगा। उसकी बात सुनकर एहसान जरा भी नहीं घबराया। उसने कहा कि जनाब, आपके फरेब का पोल खुल गया है। आप मेरे मालिक को धोखा देकर इन्हें तबाह करना चाहते थे। असली माल लेकर इन्हें नकली अशरफियां थमा रहे थे। अमानत ने ये बात सुनी तो उसने जल्दी से गोहर सौदागर की दी हुई एक अशरफी थैली से निकालकर जमीन पर घिसी और ये देखकर वो हैरान रह गया कि उसका सोने जैसा रंग उतर गया था और अंदर से पीतल की धात नजर आने लगी थी। उसने मजीद कई अशरफियां जमीन पर घिस कर देखी, वो भी सब की सब नकली थी। ये देखकर गोहर सौदागर घबरा गया। उसने खुद को सिपाहियों की गिरफ्त से छुड़ाकर भागने की कोशिश की, मगर कामयाब ना हो सका। सिपाहियों ने गुलामों से कहकर अमानत का सारा सामान ऊंटों पर से उतारकर वापस दुकान में रखवाया और उनको भी
गिरफ्तार करके अपने साथ ले गए। सिपाही अपने साथ नकली अशरफियों की थैलियां भी ले गए थे ताकि उन्हें मुजरिम के साथ काजी के सामने पेश किया जाए। ये हंगामा देखकर आसपास के लोग भी वहां जमा हो गए थे और मुख्तलिफ सवालात कर रहे थे। अमानत ने उन्हें इस वाक़े के मुतल्लिक़ बताया। वो बहुत खुश था कि वो एक बड़ा धोखा खाने से बच गया। जब लोगों का शोर कम हुआ तो उसने बड़ी मोहब्बत से एहसान को अपने करीब बिठाया और बोला, एहसान, जब तुमने एक अशरफी छुपाकर अपनी जेब में रखी थी तो मैंने तुम्हें देख लिया था और मुझे तुम्हारी उस चोरी पर बहुत अफसोस हुआ था। ये तो मुझे अब पता चला है कि तुम चोर नहीं थे और जो कुछ भी कर रहे थे मेरे फायदे के लिए ही कर रहे थे। एहसान ने मुस्कुराकर कहा कि खुदा का शुक्र है कि मेरी बेगुनाही साबित हो गई। जब मकसूद का हाथ लगकर अशरफियां जमीन पर गिरी थी तो ठन की तरह आवाज आई थी। मुझे अच्छी तरह पता है कि तांबे और पीतल के सिक्कों के गिरने से ऐसी आवाज आती है। अशरफी जमीन पर गिरे तो उनकी आवाज दूसरी होती है। यूं लगता है कि जैसे फर्श पर कोई पत्थर ठक करके गिरा हो। उसके गिरने से आवाज में खनक नहीं होती जैसे पीतल के सिक्कों में होती है। मैंने अशरफियों के नीचे गिरने की आवाज सुनी तो मुझे उसी वक्त शुबा हो गया था। मैं सबकी आंख बचाकर एक अशरफी लेकर बाहर निकला और कोने में बैठकर उसको जमीन पर घिस कर देखा तो अंदर से पीतल की धात दिखाई दी। जबकि अशरफियां तो खालिस सोने की होती हैं, उन्हें कितना ही घसें उनकी पीलाहट खत्म नहीं होती। मैं समझ गया कि ये आदमी कोई धोखेबाज है और आपको जल देने की फिक्र में है। ये देखकर मैं भागा भागा दारोगा जी के पास पहुंचा और उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने गौर से मेरी बात सुनी और सुनकर मुझे शाबाशी दी। फिर उन्होंने अपने सिपाही मेरे साथ कर दिए ताकि वो उस नौसरबाज को पकड़ सके। अमानत कहने लगा कि एहसान, मैं तुम्हारा मशकूर हूँ कि तुम्हारी अक्लमंदी की वजह से मैं एक बहुत बड़े नुकसान से बच गया हूँ। अगर वो चालाक सौदागर अपने मकसद में कामयाब हो जाता तो मेरे तबाह होने में कोई कसर नहीं रह गई थी। मकसूद भी उन दोनों के करीब खड़ा हो गया और ये बातें सुन रहा था और हैरान हो रहा था। उसे इस बात की बहुत खुशी थी कि उसका दोस्त एक अक्लमंद लड़का है। अमानत तो एहसान से बहुत ही खुश था। उसने इस बात पर अफसोस का इजहार भी किया था कि उसने उस पर नाहक शक किया था। इस खुशी में उसने दोनों लड़कों को 10-10 दरहम भी दिए और कहा कि अगले हफ्ते मेला शुरू हो रहा है, ये रकम तुम दोनों वहाँ खर्च करना और मजे से घूमना फिरना और जो जी में आए खाना पीना। दोनों लड़के खुश हो गए। अगले दिन अमानत की दुकान पर शहर का दारोगा आया और आते ही एहसान के बारे में पूछा। अमानत ने एहसान को बुलाकर उसके सामने खड़ा कर दिया। दारोगा ने शफकत से उसके सर पर हाथ फेरा और बोला कि तुमने एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। उस मुजरिम को काजी की अदालत में पेश कर दिया है और काजी साहब ने इसी सिलसिले में तुम दोनों को अदालत में तलब किया है। वो इस वाक़े की तफसील जानना चाहते हैं। एहसान था तो बच्चा ही, काजी का नाम सुना तो घबरा गया, मगर अमानत ने उसे दिलासा दिया और बोला कि घबराओ नहीं, मैं भी तो तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। अमानत ने दुकान बंद की और दोनों लड़कों को साथ लिए दारोगा जी के साथ काजी की अदालत में पहुंच गया। गुहर सौदागर कटहरे में सर झुकाए खड़ा था। थोड़ी देर में मुकदमे की कार्रवाई शुरू हुई। पहले अमानत ने तफसील बताई, फिर एहसान ने पूरा वाकया सुनाया। उसकी बात सुनकर काजी समेत वहाँ सब लोग उसकी ज़ानत पर अश अश कर उठे। जुर्म साबित हो गया था। गुहर सौदागर को 80 दर्रों और 10 साल कैद की सजा सुना दी गई। इसके बाद काजी ने एहसान से कहा कि लड़के एहसान, मैं तुम्हारी ज़हानत से बहुत मुतासिर हुआ हूँ। तुम्हारी अगर सही तालीम और तरबियत हो तो तुम बड़े होकर एक बहुत अच्छे और काबिल इंसान बनकर मुल्क की खिदमत कर सकते हो। मैंने पता करवा लिया है कि तुम्हारा ताल्लुक एक गरीब घराने से है, जिसकी वजह से तुम इतनी कम उम्री में मेहनत मजदूरी करने पर मजबूर हो। तुम्हारे इस कारनामे के सिलसिले में मैंने फैसला किया है कि सरकारी खजाने से तुम्हें 5 साल तक 200 दरहम माहाना वजीफा दिया जाएगा। मैं तुम्हारे